فلسطین کی زمین، وہی سرزمین جہاں اذان کی پہلی صدا بلند ہوئی، جہاں انبیاء نے سجدے کیے، جہاں جبرائیل نے پیغام وحی لے کر قدم رکھے، آج وہی زمین زخمی ہے، اس کی ہوائیں سسکیاں بھر رہی ہیں اور اس کے آسمان پر سرخی چھا چکی ہے۔ شہیدوں کے خون کی سرخی شام کے سرخ سنہری آسمان تلے، دو افواج صف آرا ہیں، لیکن یہ صرف افواج نہیں، یہ تاریخ کا وہ لمحہ ہے جہاں تقدیروں کے باب بدلنے والے ہیں۔ ایک طرف دجال کی شیطانی طاقتیں، جن کے ہتھیاروں میں نفرت، آنکھوں میں غرور اور دلوں میں ظلم کی آگ بھڑک رہی ہے، اور دوسری طرف نور کا لشکر، جن کی پیشانیوں پر سجدوں کا نور ہے، زبانوں پر تکبیر اور دلوں میں یقین کی مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ امام مہدی کی نگاہ میں استقلال ہے، حضرت عیسی کی آنکھوں میں وہ عزم جو آسمان سے آیا ہے۔ میدان میں کھڑے مومنین شہادت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ مارکا زمین کی ملکیت کے لیے نہیں، یہ مارکا ہے حق اور باطل کے درمیان آخری ٹکراؤ کا، جہاں وقت کی سانسیں رکھ چکی ہیں، جہاں آسمان، زمین، فرشتے اور شیاطین سب گواہ ہیں۔ جنگ کا نقارہ بچ چکا ہے، فضا میں ایک سکوت ہے، جیسے کائنات بھی اپنے انجام کا انتظار کر رہی ہو، اور اب فیصلہ ہونے والا ہے۔ دیکھو آگ کیسے آسمان کو چاٹ رہی ہے، اندھیرے کی چادر اتنی گہری ہو چکی ہے کہ روشنی نے خود کو خوف سے چھپا لیا ہے۔ یہ سناٹا، یہ میری آمد کی تمہید ہے۔ میں دجال، دوزخ کا ولی، شیطان کا نائب، زمین پر شیطانی حکومت کا علم بردار۔ میری آنکھوں میں وہ چمک ہے جو فرشتوں کو بھی اندھا کر دے۔ میری پیشانی پر وہ سیاہی ہے جسے صدیوں کے انبیاء بھی مٹا نہ سکے۔ اے میرے وفاداروں، اے جہنم کے سپاہیوں، وقت آ گیا ہے۔ ہاں، وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا شیطان نے صدیوں انتظار کیا۔ آج ہم حق کا چراغ بجھا دیں گے، آج ہم نبوت کے نام کو مٹا دیں گے، آج ہم اسلام کو زمین سے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ آج شیطان کی سلطنت زمین پر اترے گی، اور میں تمہارا نجات دہندہ ہوں، تمہارا بادشاہ، تمہارا مسیحا۔ چیخو، گرجو، مجھے اپنی وفاداری کا اعلان سناؤ۔ دجال، جہنم کے دروازے کھل چکے ہیں، اور زمین اب صرف میری ہے۔ ہلاک ہو حق، مٹ جائے ایمان، جیت ہو باطل کی، حکومت ہو صرف دجال کی۔ دجال، دجال ہمارا بادشاہ، باطل زندہ باد، باطل زندہ باد۔ اے شیطان کے سپاہیوں، وقت آ گیا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں۔ آج شیطان کی حکومت دنیا پر قائم ہوگی۔ اے میرے پیروکارو، اے شیطان کے لشکروں، آج کا دن تمہاری وفاداری کا انعام ہے۔ آج وہ دن ہے جب ہم دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا میری طاقت؟ میں نے اندھوں کو بنا کیا، مردوں کو زندہ کیا، زمین کو جھکایا اور آسمان کو چیلنج کیا۔ کون ہے جو میرے مقابل آئے؟ کون ہے جو میری بادشاہت کو چیلنج کرے؟ عیسی، مہدی، یہ سب تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں، یہ صرف ایک دھوکہ ہے۔ تم وہ ہو جنہیں میں نے طاقت دی، جنہیں میں نے خون کا پیاسا بنایا، اور آج تم میرے حکم پر دنیا کو سجدہ کراؤ گے۔ تمہیں پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ آج ہم مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے۔ آج دنیا پر صرف ایک حکومت ہوگی، دجال کی حکومت۔ آگے بڑھو، میرے لشکر آگے بڑھو، اور اس زمین سے اللہ کے نام کو مٹا دو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور شیطان تم پر خوش ہے۔ اے دجال، تو نے زمین کو گمراہی سے بھر دیا، کمزوروں کو ڈرایا، ظالموں کو طاقت دی، اور خود کو رب کہلوانا چاہا۔ لیکن سن لے، آج اللہ رب العزت کے حکم سے تیرا ہر فریب بے نقاب ہوگا، تیرا ہر جھوٹ دفن ہوگا۔ ہم اس رب کی طرف سے آئے ہیں جو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا۔ آج ہم توحید کا علم بلند کرتے ہیں، آج ہم عدل کی تلوار سے تیرے ظلم کا خاتمہ کریں گے۔ اٹھو اے مومنو، یہ وقت ہے سچائی کے دفاع کا، یہ گھڑی ہے باطل کے خاتمے کی۔ اے مخلصو، اب تمہارے دلوں میں کوئی خوف نہ رہے، کیونکہ حق تمہارے ساتھ ہے اور اللہ کی مدد قریب ہے۔ دیکھو، یہ زمین جس پر تم سجدہ کرتے ہو آج تم سے وعدہ کر رہی ہے کہ وہ تمہارے خون کو شہادت کا سرخ گلاب بنائے گی، اور تمہاری قربانیوں کو جنت
की खुशबू अता करेगी। न तलवारों से घबराओ, न तादाद से डरो, क्योंकि जब अल्लाह साथ हो तो एक मोमिन हजारों बातिल पर भारी होता है। ए दजाल, ये तेरा आखिरी सूरज है, ये तेरा आखिरी लम्हा है, क्योंकि अब रहमत के परों तले गुस्से की बजलियां लपक रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज का दिन फतह का दिन है। क्या तुम मुझे शिकस्त दोगे? मैंने लोगों को मौजिज़े दिखाए, मेरे पैरोकार करोड़ों में हैं और तुम चंद लोग मुझे चीलिंग करते हो। मैं खुद को खुदा समझता हूँ। फजा में काली बजली गूंजती है और उसके चेहरे पर शैतानी गुरूर छा जाता है। सोए मेरे बहादुर साथियों, ए वो लोगों जो अंधेरे के मुकाबले में रोशनी का परचम उठाए खड़े हो, आज का दिन सिर्फ जंग का दिन नहीं, ये दिन है कुर्बानी का, ये दिन है सदाकत का, ये दिन है इस वादे की तकमील का जो अल्लाह ने हमें दिया था। दुश्मन ताकत में हमसे बड़ा हो सकता है, मगर ईमान में, इरादे में हम उससे 1000 गुना मजबूत हैं। याद रखो, हम इस जमीन के वारिस हैं। हम वो हैं जिन्होंने न जुल्म के आगे झुकना सीखा, न फरेब के सामने हार मानना। जब तुम तलवार उठाओ तो ये समझकर उठाना कि तुम सिर्फ जमीन नहीं बचा रहे, तुम दीन मोहम्मदी का दिफा कर रहे हो। तुम हक की आखिरी सफ हो और अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। अल्लाह के नाम पर लड़ो, न पीछे हटना, न झुकना, न रुकना, क्योंकि तुम हक पर हो और हक कभी हारा नहीं करता। लश्कर के दिलों में आग भड़क उठती है, ईमान की रोशनी चेहरों पर चमकती है और हर सिपाही शहादत का प्यासा आखिरी जंग के लिए तैयार हो जाता है। ये वो लम्हा है जब ईमान, हौसला और अल्लाह की मदद की ताकत पर यकीन के साथ हर सिपाही मैदान में कदम रखता है। ये मैदान सिर्फ जिस्मानी जंग का नहीं है। अल्लाह के नेक बंदू, ए वो लोगों जो हक के अलमबरदार हो, आज जो मार्का हम पर आने वाला है वो कोई आम जंग नहीं। ये वो लम्हा है जब आसमान भी झुक कर देखेगा और जमीन अपने रब की तस्बीह में लर्ज उठेगी। हम इन लोगों के मुकाबिल हैं जो झूठ, फरेब और शैतान के पैरोकार हैं। लेकिन याद रखो, अंधेरा जितना भी गहरा हो, जब नूर आता है तो सब कुछ छुट जाता है। हम अल्लाह की रिजा के लिए निकले हैं। हमारा मकसद जमीन पर अदल, रहम और तौहीद का क़याम है। हम न किसी तख्त के तलबगार हैं, न किसी दुनियावी माल के। हमारा मकसद सिर्फ एक है, हक का गलबा। जब तुम दुश्मन की तरफ बढ़ो तो ये यकीन रखो कि फरिश्ते तुम्हारे साथ कदम बे कदम हैं। हर वार, हर सांस, हर कदम अल्लाह की राह में है। हौसला रखो, सब्र रखो और ईमान को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि फतह सिर्फ तलवार से नहीं, ईमान से हासिल होती है। आज नहीं झुकना, आज नहीं रुकना, क्योंकि आज अल्लाह की नसरत हम पर नाजिल होने वाली है। ईसी अलैहिस्सलाम की आवाज़ मैदान में गूंजती है और हर सिपाही के दिल में एक नूर भर जाता है। ये जंग सिर्फ फतह की नहीं, ये जंग क़यामत से पहले के आखिरी हक की जंग है। नकारा बजता है, जमीन की गहराइयों में गूंज उठता है, एक जबरदस्त सदा हर सो फैलती है और फिर दोनों अफवाज एक दूसरे से टकरा जाती हैं। दजाल की फौज की चीखें गूंजती हैं, शैतान के पैरोकारों का गहरा सन्नाटा, जहां फुटते हुए कदमों की आवाजें और खून की बीजार फजा में बैल का शूर बढ़ता। लेकिन सफ़े अव्वल में जहां ईमान का नूर चमक रहा है, वहां है हजरत ईसी अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी। दोनों की तलवारें दरख्शां, चेहरे जलाल व रूहानियत से भरा हुआ। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम की तलवार एक झटके में दुश्मन के सफ़ों में छा जाती है। इमाम मेहदी के कदमों की धमक जैसे जमीन को लर्जा देती है। उन्होंने हक की ताकत से जंग का आगाज किया है। उनके साथ वो मोमिन हैं जिनकी आंखों में चमक और दिलों में यकीन है। जमीन लरजती है, आसमान गविया रख गया हो। दौर से भी सुनाई दे रहा है ये मार्का, ये जंग जो हक और बातिल के दरमियान एक फैसला कन लम्हा साबित होगी। ये वो लम्हा है जब इंसानियत की तकदीर का फैसला होने वाला है, जहां अल्लाह की मशीयत को पूरी दुनिया पर गालिब आना है। अब मार्का शुरू हो चुका है और सिर्फ एक ही सवाल बाकी है, क्या हक का परचम बुलंद होगा या बातिल की फौज जमीन को अपना तसल्लुत देगी? खौफनाक जंग के इस मैदान में
जहां हर लम्हा तकदीर बदल रही है, हजारों आवाजें गुम हो रही हैं और सिर्फ एक ही हकीकत बाकी रह जाती है। ये जंग हक और बातिल के दरमियान जीतने वाले के लिए होगी। आसमान से नूर उतरता है, दुश्मन की सफ़ें दिरहम बरहम जो ढालें टूट रही हैं, बातिल पीछे हट रहा है, हक की रोशनी पूरे मैदान को रोशन कर रही है। एक तलवार बुलंद होती है और लश्करी ईमान सजदे में गर कर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फजा अल्लाह अकबर से गूंज उठती है, फतेह रहमान के लश्कर की हुई। धुआं छुट चुका है, जमीन थम गई है और दज्जाल जख्मों से चौर शकस्त खुर्दा हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा है। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम पुरस्कून मगर फैसला कुन अंदाज में, ऐ फरेब के पुजारी, तूने खुदा बनने की कोशिश की, मगर आज अल्लाह के एक बंदे के हाथों तेरा झूठ फना होने वाला है। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम तलवार बुलंद करते हैं, एक जर्ब, सिर्फ एक, और वो झूठ जो सदियों से फैलता रहा खाक में मिल जाता है। दज्जाल का फितना खत्म हो चुका है। जमीन ने सुकून का सांस लिया और आसमान ने नूर से एक नई सुबह को खुश आमदीद कहा। यह हक की वो जीत थी जिसका वादा सदियों पहले क्या गया था। मैदान में खामोशी है। दज्जाल जंजीरों में जकड़ा हजरत ईसी अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया जाता है। इसके चेहरे पर वहशत है और दिल में वो खौफ जो सिर्फ हक के सामने आता है। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम पुरस्कून मगर नूरानी जलाल से, ए फितना परूर, तूने झूठ को फैलाया, लोगों को रब से दूर किया। आज तेरे अंजाम की घड़ी है। ये अल्लाह का फैसला है और वो फैसला टलता नहीं। ए ईसी, ए मेहदी, बस एक मौका दे दो, मैं बदल जाऊंगा, मैं सच्चाई को मान लूंगा, मैं सजदा करूंगा। बस एक मौके, एक और मोहलत, वक्फा, सांसें तेज, आंखों में फरेब। मैं वादा करता हूं, मैं दोबारा किसी को नहीं बहकाऊंगा, मैं सिर्फ रब की इबादत करूंगा, बस मुझे माफ कर दो। लेकिन हजरत ईसी अलैहिस्सलाम इसकी आंखों में छिपा फरेब देख लेते हैं और जवाब देते हैं, ए दज्जाल, तूने हक को जानने के बावजूद इनकार किया। तूने जमीन को जुल्म से भर दिया और खुद को रब कहलवाना चाहा तो सिर्फ इंसानों का मुजरिम नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दुश्मन है। आज न तेरे फरेब का असर बाकी रहा, न तेरी जबान का झूठ। तू अपने अंजाम को पहुंच चुका और माफी तेरे लिए हराम हो चुकी। आसमान शक होता है। ज़ुल्फ़कार आसमान से एक शौला बनकर उतरती है। सबकी निगाहें ऊपर की तरफ जम जाती हैं। फैसले का वक्त आ चुका है। हजरत ईसी अलैहिस्सलाम ज़ुल्फ़कार को थामते हैं। दो धारी तलवार जिसमें रब की नसरत छिपी है। दज्जाल घटनों के बल गिरता है। अब वो फरियाद नहीं, सिर्फ खौफ है उसकी आंखों में। नहीं नहीं, ये मेरे लिए नहीं, ये तलवार मेरे लिए नहीं, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। ये तलवार तेरे जुल्म का हिसाब लेने के लिए है। तेरी फरेबकारी का अंजाम यही है। ज़ुल्फ़कार बिजली की तरह चमकती है और एक ही वार में दज्जाल का सिर जमीन पर गिरता है। जमीन सजदे में चली जाती है। आसमान से नूर बरसने लगता है। बातिल का खात्मा हो चुका है। हक सिर बुलंद हो चुका है। सुबह की पहली रोशनी, मुहीब खामोशी, शहदाओं की खुशबू, फजा में अमन की आहट, धुएं के बादल छुट चुके हैं। तलवारें नियाम में जा चुकी हैं और सजदे जमीन को महका रहे हैं। जहां कल गरजते थे नेज़े, आज वहां परंदे नगमे गा रहे हैं। जहां कल चीखें थीं, आज वहां अल्लाह अकबर की गूंज है। ये ज़मीन अब नई कहानी सुनाने को तैयार है। एक कहानी है जहां ईमान जीता और फरेब दफन हुआ। इमाम मेहदी को कुंधों पर उठाया जाता है। लबों पर नारा तकबीर, दिलों में शक्कर का समंदर उमंड रहा है। आंसू खुशी से बहते हैं, लेकिन वो सिर्फ कामयाबी के नहीं, वो इस वादे की तकमील के हैं जो सदियों से मुमनीन के दिलों में जिंदा था। फ़ज़ा में फूल बरस रहे हैं। फरिश्ते आसमान से झुककर मुबारकबाद दे रहे हैं। ज़मीन अर्श के नूर से महक रही है। ये जश्न सिर्फ फतह का नहीं, ये जश्न है इंसाफ का। ये जश्न है तौहीद की सरबुलंदी का और उस सब्र का जो अम्त ने नस्ल दर नस्ल किया। ये लम्हा एक नई शुरुआत है, एक ऐसी दुनिया की जहां जुल्म मिट चुका और अदल का सूरज तुलुआ हो चुका है। पाकिस्तान के दरवाजे खुलते हैं। फ़ज़ा तकबीरों से गूंज उठती है। फूलों की बारिश हो रही है। बच्चे गुलाब हाथों में लिए इमाम मेहदी का इंतज़ार कर रहे हैं। हर गली, हर कोचा सब्ज़ हिलाली परचमों से सजा हुआ है। दिलों में एक ही नारा गूंजता है, लब्बीक या मेहदी, लब्बीक या मेहदी। जब लश्कर हक सरजमीन पाकिस्तान
میں داخل ہوتا ہے تو زمین سجدے میں جھکتی ہے اور آسمان گویا دعائیں بھیجتا ہے۔ یہ لمحہ نہ صرف تاریخ کا موڑ ہے بلکہ امتی مسلمہ کی نئی زندگی کا آغاز بھی ہے۔ ایسا استقبال جسے نسلیں یاد رکھیں گی اور جسے تاریخ سنہرے حروف سے نہیں بلکہ ایمان کے نور سے لکھے گی۔ ایک خاموشی چھائی ہوئی ہے، دروازے کھلتے ہیں اور بادشاہ جو کل تک تخت پر بیٹھا تھا آج زنجیروں میں جکڑا ہوا امام مہدی کے سامنے کھڑا ہے۔ موس کی آنکھوں میں خوف، چہرے پر پچھتاوے کی سیاہی اور دل میں صرف ایک سوال، کیا اب بھی معافی ممکن ہے؟ امام مہدی نگاہ اٹھا کر فرماتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب عدل بولتا ہے اور ظلم خاموش ہو جاتا ہے۔ بادشاہ کا سر جھکتا ہے، اس کے تاج کی چمک مانت پڑ جاتی ہے اور زمین گواہ بن جاتی ہے کہ طاقت جب تکبر میں بدل جائے وہ باقی نہیں رہتی۔ یہ وہ دن ہے جب بادشاہی زنجیر، زمین پر ہر طرف ہریالی ہے، بارشیں رحمت بن کر برس رہی ہیں، درختوں پر پرندے خوشی کے نغمے گا رہے ہیں۔ جنگ کا شور اب قصہ ماضی بن چکا ہے اور ایمن کی آواز دلوں میں اتر چکی ہے۔ امام مہدی کی قیادت میں انصاف تخت پر، رحم دلوں میں اور نور فضاؤں میں ہے۔ یہ دور صرف حکومت کا نہیں بلکہ ہدایت کا دور ہے۔ یہ وہ صبح ہے جس کا وعدہ کتابوں میں تھا اور جس کی دعا ماؤں نے راتوں کو مانگی تھی۔ انسانیت جو بکھر چکی تھی آج ایک پرچم تلے اکٹھی ہے۔ یہی ہے وہ نیا دور جو ظلم کے بعد آتا۔ ایک کتاب کھلتی ہے، اس کے صفحات خوشبودار اور روشن۔ ان میں لکھا ہے امن، علم، عدل اور شفا۔ یہ کوئی عام وراثت نہیں، یہ وہ خزانہ ہے جو نہ زوال دیکھے گا نہ اندھیروں سے ڈرے گا۔ امام کی میراث تخت نہیں، ایک بچہ چھت پر بیٹھا کعبہ کی طرف دیکھتا ہے، آنکھ سے ایک آنسو گرتا ہے، آسمان پر چمکتے تارے اور پس منظر میں لکھا جاتا ہے انتظار کرو وہ ضرور آئے گا۔